Hello friends, Kalarav School Halol presenting this video for standard 9th English medium subject English. Friends, today we are going to discuss about the lesson from the book Behave, chapter number 9, The Bond of Love. Friends, in this lesson we are going to discuss about the bond of love between human and animal. We know very well from the ancient of the time the humans are very closely with the animal, whether they were domestic or wild animal. Okay, the animals are very useful to us by any many of the things, but we know that the friendship with the uh, animal is also very popular. In many of the example, we show many of the films related to relationship between man and human and animals. Okay, so this our lesson is also based on the particular relationship between animal and human being. Let's see what is there. Can there be love and friendship between human beings and wood animals? If it is possible that there is a friendship between human being and animal, is there? Okay, let's read a fascinating account of an approach short beer, and that was reduced by the author. Okay, author was very close to this beer, and what happened with this beer and how they come closer with each other. This is the central theme of this lesson. Salt bear inhabit forest area including the tropical rainforest of the India and grassland at the lower elevation. Okay, so this type of the bear, sloth bear, are we generally found into the tropical rainforest of India, and also we can find this kind of the bears into the grassland of at lower elevations. Okay, that is called south bear. South bear have very sluggy hair, means बहुत ज़्यादा उसके बाल होते हैं, means there are सूगी means बहुत ज़्यादा, a lot of hair and a long muzzles. Okay, और उसका जो नाक आगे का जो पोर्शन होता है मुंह का, that is long. Okay, using their claw to dig, he is trying to dig all the time with the use of their claw, and they can then use their lips from a lips to form a tube which can go deep into the ground or hard to reach areas like dead trees for their food. Okay, so that is the characteristic we can say about this kind of the south bear, that their tongue, we can say, is very sharp. Okay, their main food is termites. Okay, termite उनका main food है, and they can hear them shuck up for their food from the several feet away. वो बहुत दूर से अपने जो शिकार है उनको सूंघ लेते हैं या उनकी आवाज़ उनको पता चल जाती है. These are the characteristic of this kind of animal. So here our story will start. I will begin with Bruno. Bruno is the name of that bear. Okay, so I will begin with Bruno, my wife's pet, that is salt bear. Bruno, that is salt bear. I got him for her by accident. The writer told here that he got that Bruno by accident. 2 years ago, we were passing through the sugarcane field near my shore. Means the writer started to tell the story, and he tell this story in a flashback. Okay, so before 2 years ago he was passing through the sugarcane field near his Mysore. Mysore is a place where this place were occurred. Okay, people were driving away the wild pigs from the field by shooting at them, because the wild pigs are very harmful to the field crops. That's why they shooting on them. Some were shoot and some accept. बराबर है, कुछ उनको शूट हो गए थे और कुछ भाग गए थे. We thought that everything was over. Then suddenly a black south bear came out, painting in the
hot sun. Okay, and suddenly the writer see that one साउथ बियर केम आउट, को एक भालू जो है वो बाहर आ जाता है और बहुत ज़्यादा धूप होती है, वो धूप के अंदर वो भालू जो होता है वो वहाँ पे खड़ा होता है इन फ्रंट ऑफ द राइटर. नाउ आई विल नॉट शूट अ साउथ बियर wantonly, but unfortunately for the poor beast, one of my companions did not feel that the way out it and promptly shoot the bear on the spot. Okay, अचानक जो बालू बाहर आ गया, राइटर डिडंट विलिंग टू शूट दैट बियर, उनको इच्छा नहीं थी उनको मारने की, लेकिन उनका जो कंपेनियन था, उनका जो पार्टनर था, दोज हु वर also joined with the writer in that hunting place, so he shoot the bear on the spot. बराबर है, वो वहीं पे उसको गोली मार देता है. As we watched, the fallen animal were surprised to see that the black fur on its back moved and left the postured body. Okay, posture mean यहाँ पे दिया हुआ है laying on the ground फेसिंग डाउनवर्ड्स, मतलब जो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है उल्टा होकर. बराबर, जैसे उसको गोली लगी तो कुछ उसके अंदर से अलग, एक्चुअली जो बियर था वो अपने छोटे से बच्चे को अपने सीने से लगाकर वहाँ से जा रहा था. एट द सेम टाइम राइटर और उनके फ्रेंड ने उनको शूट कर दिया और वो तो वहाँ पे मर गया, बट जो बच्चा था वो बच गया. देन वी शो, उसके बाद उनको पता चला कि इट वॉज अ बेबी बियर, छोटा सा बच्चा है, हैड बीन राइडिंग ऑन इट्स मदर्स बैक, मदर की अपनी मर्द की बैक के ऊपर बैठकर जो राइड कर रहा था. ही वॉज सेफ्ड. ओके, एंड ही वॉज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम दैट प्लेस when the sudden shoot, जब अचानक से उसकी माँ को गोली लग गई, he had killed her, हमने उसको मार दिया. a little creature run around its posture, वो अलग होकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, आजू बाजू घूम रहा था. parents making a pitiful noise, और वो बहुत दुख से, मतलब दर्द से रो रहा था कि भाई क्या हो गया उसकी माँ को. what happened with his mother. I ran up to it to attempt a capture. It scolded into the sugarcane field. Following it with my companions, I was at least able to grab it by the scarf of its neck while it snapped and tried to scratch with me with its long hooked claws. Okay, so writer, he was trying to capture that small little bear into the sugar cane field. Okay, वो अपने कंपेनियन के साथ उसके पीछे भागते हैं, फिर उसको गर्दन से उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से उनके छूटने की कोशिश में वो स्क्रैच कर देता है उनके उसके क्लोज से, बिकॉज ही वॉज वेरी स्मॉल लिटल. वी पुट इट इन वन ऑफ द गुनी बैग्स, बराबर एक गुनी बैग्स के अंदर वो मतलब डाल देते हैं. वी हैड ब्रॉट एंड व्हेन आई गॉट बैक टू द बैंगलोर आई ड्यूली प्रेजेंटेड इट टू माई wife. Writer told here that when he was returned from this hunting, okay, whenever he came to his house at Bangalore, और वो अपनी वाइफ को इसको प्रेजेंट कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं. शी वॉज डिलाइटेड, हिज वाइफ बिकम वेरी डिलाइटेड, बहुत खुश हो जाती है. शी एट वंस पुट अ कलर्ड रिबन अराउंड इट्स नेक, और उसको इतना अच्छा लगता है कि वो उसको प्यार से उसके राउंड, मतलब नीक, मतलब के गर्दन के आसपास क्या बांध देती है, रिबन बांध देती है. एंड आफ्टर डिस्कवरिंग द कब वॉज बॉय, और बाद में पता चलता है कि वो क्या है, बॉय है. शी क्रिश्चियन इट्स ब्यूरो, फिर वो उसका नाम क्या रख देती है, ब्रूनो रख देती है. Bruno soon took to drinking milk from bottle. He was very small. He was very little kid. So जैसे दूसरे बच्चे होते हैं जो बॉटल, छोटे बच्चे जो बॉटल में से दूध पीते हैं, तो ब्रूनो ने भी बॉटल में से दूध पीना सीख लिया. इट वॉज बट अ स्टेप फर्दर एंड विद इन अ वेरी फ्यू डेज ही स्टार्टेड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एवरीथिंग एल्स. कुछ ही दिनों बाद वो सब कुछ खाने लगा. एंड एवरीथिंग इज़ इन राइट वर्ड, बराबर सब कुछ वो सही चल रहा था. फॉर एट पोरेज मेड फ्रॉम माई ingredients, vegetables, fruits, nuts, meats, curry and rice
उसके अलावा रिगार्डलेस ऑफ द condiments and the chilies, bread, eggs, chocolates, sweet pudding, आइसक्रीम एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, मतलब जो कुछ भी राइटर के घर में था एवरीथिंग ही वॉज ईटिंग, बराबर सब कुछ वो खाता था. एज फॉर ड्रिंक मिल्क, उसके अलावा वो क्या पीता था, मिल्क पीता था, कॉफ़ी पीता था, लेमन जूस पीता था, उसके अलावा वो एरिएटेड वाटर पीता था, बराबर है, बटर मिल्क पीता था, बियर अल्कोहल पीता था, उसके अलावा लिक्वेयर और इनफैक्ट एनीथिंग लिक्विड, इट ऑल वेंट डाउन विथ रेलिश मीन्स बहुत ज़्यादा उसको स्वाद आता था, सारी चीज़ों उसको खाने का बहुत ही शौक हुआ था. द बियर बिकम वेरी अटैच टू ओन टू द Elstian dogs as to all the children of the tenants living in our bungalow. He was left quite free in his younger days and spent in this time in playing, running into the kitchen and going to sleep in our beds. और उसके बाद वो जहाँ पे उनके घर में रहने लगता है तो उनके घर में ऑलरेडी 2 डॉग्स होते हैं जिनके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और वो सब लोग साथ में रहने लगते हैं और वो कभी कभी एक ही बेड में सो भी जाते हैं. वन डे एन एक्सीडेंट बिफेल हिम, एक दिन क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ. आई पुट डाउन अ पॉइजन, बराबर है, बेरियम कार्बोनेट करके एक पॉइजन था जो टू किल द रैट्स, चूहों मारने के लिए उन्होंने वहाँ पे राइटर ने रखा हुआ था, चूहे और मीस मतलब बिल्ली को. दैट हैड गॉट इनटू माय लिबर्टी. ब्रूनो एंटर टू द लाइब्रेरी में उन्होंने रखा हुआ था तो ब्रूनो वहाँ पे एंटर हो गया. उसको लगा, वो खाने का बहुत शौकीन था तो उसको लगा कि भाई ये भी कुछ खाने की चीज़ होगी. एज ही ऑफन डिड, उसको हमेशा जो भी कुछ मिलता था एवरीथिंग ही वॉज पुटिंग डाउन इन हिज माउथ ओनली, तो उसको लगा कि ये भी खाने का होगा. एंड ही एट सम ऑफ द पॉइजन, और कुछ वो खा लेता है. पैरालिसिस, उसको पैरालिसिस हो जाता है. सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन इट्स फीट, और इतना खराब नेगेटिव उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है कि वो अपने पैरों के ऊपर बेचारा खड़ा भी नहीं रह पाता है. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ इनटू द स्टम्प्स टू माय वाइफ, लेकिन वो घसीटता हुआ अपनी बॉडी को घसीटता हुआ राइटर की वाइफ तक चले जाता है और वो कहता है हु कॉल्ड मी आई गेस्ड व्हाट हैड हैपन, जैसे कि ऐसा बताने की कोशिश कर रहा हो राइटर की वाइफ के पास जाकर के देखो ये मुझे क्या हो गया है. मीन्स वो राइटर की वाइफ के साथ वो काफ़ी कुछ गुल मिल गया था. ऑफ आई रस्ट इन टू द कार एंड वेट्स रेसिडेंस, और हमें राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं फटाफट जितना जल्दी हो सके मैं अपनी गाड़ी में उसको बिठाकर एक वेटरनरी डॉक्टर, वेट्स मीन यहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर के पास मैं उसको ले गया. वेटरनरी डॉक्टर के पास ले जाने का इंटेंस उनका ये था कि भाई उसको क्या हुआ है उसके बारे में वो क्योर कर सके. इन द केस ऑफ पॉइजनिंग टीम बियर बर्लिन कार्बोनेट व्हाट टू डू, बराबर, ये जो है बर्लिन कार्बोनेट को ईट करने की वजह से उसको क्या प्रॉब्लम हुई होगी, किस तरीके से ये क्या करेगा, किस तरीके से उसको आगे ले जाना है, उसके बारे में दे वर डिस्कस्ड. आउट केम इन टू द मेडिसियल बुक, और मेडिसियल बुक में से पता चला कि अ फ्लेवरिश रेफरेंस टू द इंडेक्स बिगन व्हाट पॉइजन डीड यू से सर, बर्लिन कार्बोनेट, ओ यस बेबी, बर्लिन सॉल्ट, ओ बर्लिन कार्बोनेट, सिम्टम्स पैरालिसिस, ट्रीटमेंट, इंजेक्शन ऑफ जस्ट अ मिनट सर, आई विल ब्रिंग माई सर्ज सिरिन एंड the medicine. Here the doctor was very intelligent person and he always find out the क्योर फ्रॉम द बुक ओनली, और वो अपनी बुक में देख लेता है कि बर्लिन कार्बोनेट का सिम्टम्स क्या है, तो वो क्या है, पैरालाइज होने का. तो वो अपना इंजेक्शन जो है वो उसको जो भी रिलेटेड मेडिसिन है वो उसको देता है. अ डैश बैक टू द कार, और उसके बाद उसको कार में ले जाया जाता है. ब्रूनो स्टिल फ्लडरिंग का मीनिंग यहाँ पे दिया है स्ट्रगलिंग टू मूव, ही इज़ नॉट एबल टू मूविंग एट लीस्ट अबाउट ऑन हिज स्टैम्प बट क्लियरली वीकिंग रैपिडली, वो बहुत धीरे कमज़ोर पड़ रहा था. सम वॉमिटिंग, उसको वॉमिटिंग हो रहा था. हैवी ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी. विथ अ हैविंग फ्लंग्स एंड गैप्ड माउथ, बराबर है, उसको
सॉरी, माउथ में उसको ये सारी चीज़ें चले जाने की वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा था. होल्ड हिम एवरीथिंग, उसने सब कुछ होल्ड करके रखा. इन गोज टू द हाइड्रोड्रेमिक ब्रूनो स्क्वाल 10 cc of the antidote entries in his system without a drop being wasted. 10 minutes later, condition unchanged, another 10 cc injected. Then 10 minutes later, breathing less studious, Bruno can move in his arm and legs and little, although he can stand yet. अब उसको हाइड्रोकॉमिक यहाँ पे बताया गया है. अ लॉन्ग नीडल यूज टू गिव एन इंजेक्शन अंडर द स्किन, और उसको दिया गया 2 बार इंजेक्शन देने के बाद वो जो है वो धीरे 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 अपने पैरों के ऊपर खड़ा होने लगा, लेकिन अभी भी उसको तकलीफ हो रही थी. 30 मिनट्स लेटर, 30 मिनट के बाद ब्रूनो गेट्स अप, खड़ा हो गया, एंड हैज़ अ ग्रेट फीट, बराबर, और ही लुक्स एट अस destinefully, much as to say, what the beryllium carbonate to a big black bear like me, Bruno still eating. और वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, मतलब कहने की कोशिश कर रहा हो, ऐसा लगता है कि बर्लिन कार्बोनेट जैसा जो पॉइज़न है वो मेरे जैसे बड़े बियर का क्या बिगाड़ लेगा, और उसके बाद वो वापस से नॉर्मल होकर खाना शुरू कर देता है. तो टिल हियर वी स्टॉप्ड आवर एक्सप्लेनेशन in this video. I hope you guys enjoying this video and enjoying this lesson. This is very important and easy lesson for you related to this video. Whatever the question answers are there, that I will send you through the PDF. You have to write down in your notebook. In our next video we will discuss about the remaining part of the lesson. Okay friends, bye, take care.